Hello students, our next topic is sustainable development in your chapter number 9. Sustainable development in 1960. This was the period when people throughout the world were much concerned about the environmental issues because because of undesirable effects of industrial development, and thus the concept of sustainable development emerged in the western world. जो ये जो सस्टेनेबल वर्ड है सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में आया। वेस्टर्न यानी कि जो हमारे पश्चिमी देश हैं। क्यों वहीं पे क्यों? बिकॉज दोज एरियाज आर फुली डेवलप्ड ऑन दैट टाइम पीरियड। वो फुली डेवलप्ड हो चुके थे, वहाँ पे कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज fulfilled there at that time, and on that time they realized that due to industrialization our environment is affected. That's why this term, yeah, we can say that this concept is coming in the western world. This level of fear among environmentalists and common people reaches at its peak with the publication of population bomb. population bomb के अकॉर्डिंग जब बताया गया तो जो हमारे इन्वायरमेंट को स्टडी करने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो पर्यावरणविद हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया बाय एनलिस्ट इन 1968। उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी पॉपुलेशन बॉम्ब, इट मींस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हाई स्पीड से। The limits of growth by meadows. The limits to growth by meadows. When these two books are published, at that time the people concerned and think that the situation will be critical. Why? Because when the population is increased, demand is also increased, and when demand is increased, so for their fulfillment of their demand, the production should be improved. Production को improve करना है, that's why industrialization is more improved या more progressive. That's all. Aims of sustainable development. इसकी जो aims है वो क्या होंगे? Its main aim is to take care of economic, social and economical spheres of development during the present time, as well as conserve all the resources in such a manner that these can be retained for future generations. इसका जो main aim क्या था कि at present we can use these resources, हम इन resources को use कर सकते हैं, but we have to think that we have to store is also, yeah, we can say we can conserve these resources also for our future generation, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो future generation है, वो भी इनको utilize कर पाए. So there is a need of changing our attitudes towards nature as well as economic development. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या होगा, नेचर के टुवर्ड्स हमें अपने ओपिनियन को चेंज करना होगा. ओपिनियन को चेंज करने के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वी आर नॉट अलाउड टू थिंक द एनवायरनमेंट जस्ट द स्टोर हाउस, कि हम अपने एनवायरनमेंट को जस्ट एक स्टोर हाउस की तरह ही नहीं सोच सकते कि वी कैन टेक एंड टेक. ठीक है, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर एनवायरनमेंट आल्सो एंड फॉर इट्स सेफ्टी आल्सो. कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. Development is a dynamic concept. It means it will be changing. It is continuous and has evolved in the second half of 20th century, used to describe the state of particular societies and the process of changing experienced by them. इनके उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो सोसाइटीज ने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग जो थिंकिंग थी वो चेंज होती गई. In the early human history, the main criteria of determination of a society's state was the interaction process between human societies and their biophysical environment. Next point given था हमारे पास, societies help in the development of
various levels of technology and institutions upon which human environment process depend. जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो किसने दी? ह्यूमन बीइंग ने डेवलप की है। तो ऑल दीज जो प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड करती है? इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी पे या इंस्टीट्यूशंस ने जो ह्यूमन ने प्रोवाइड की है। नाउ अगेन द केस स्टडी, दिस इज अ केस स्टडी अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इट मींस फॉर द ड्रॉट प्रोन एरिया, टू रिमूव द ड्रॉट प्रोन एरिया, या वी कैन से फॉर इरिगेशन। It is the one of the largest canal system in India. Which canal system is largest in India? So Indira Gandhi Canal system is largest in India. It conceived by Kanwar Singh in 1948. कब से स्टार्ट किया गया? 1948 में। किसके द्वारा? कंवर सिंह। This project was launched, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ ऑफिशियली? दिस इज 31 मार्च 1958। मेन एम क्या था इसका? ट्रांसफॉर्म ए डेजर्ट इनटू ए ग्रीन लैंड। इट मींस राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, उसको एक ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करना, यानी कि उसको वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वहां पे इरिगेशन के होते हुए जो एग्रीकल्चर वगैरह है वो डेवलप्ड हो पाए। ओरिजिन एट हरिक पैरिस इन पंजाब स्टेट। कहां से स्टार्ट किया गया है? कहां से इसका ओरिजिन होता है? हरिक डैम से, जो कहां पे लोकेट है? पंजाब राज्य। goes parallel to Pakistan border at the average distance of 40 km in Thar desert of Rajasthan, या we can say मरुस्थली। ओके, जो हमारी पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उससे लगभग एवरेज 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के पैरेलल ये फ्लो करती है। टोटल लेंथ कितनी है? 9060 किलोमीटर। कमांड एरिया 19.63 लाख हेक्टेयर, यानी कि कमांड एरिया के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? कितने एरिया को टारगेट किया गया है? दिस इज 19.63 लाख हेक्टेयर। द कैनाल हैज टू इरिगेशन सिस्टम। इसको टू सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्लो सिस्टम, सेकंड इज लिफ्ट सिस्टम। सो फ्लो सिस्टम के अकॉर्डिंग 70% एरिया को क्या किया गया है? इरिगेटेड किया गया है, सिंचाई की गई है। एंड लिफ्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? ओनली 30% इज इरिगेटेड। Two stages through which the construction work of canal system has been done, such as two ways यहाँ पे बताया गया, two system है, two stages हैं। First stage के अकॉर्डिंग this command area covers गंगाधर, हनुमानगढ़ and northern part of बीकानेर district। यानी कि फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग दीज एरियाज को इसमें इंक्लूड किया गया। इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टेयर्स विद जेंटल एंडुलेटिंग टोपोग्राफी। यानी कि कल्चरेबल, यानी कि यहाँ पे जो एरिया था जो इरिगेशन के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, दिस इज 5.53 lakh hectare. In this phase, the irrigation system was introduced in early 1960s. कब irrigation को यहाँ पे introduce किया गया? 1960s में। Stage second में था, it covers 14.10 lakh hectare cultivable area of बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर and चूरू district. These places are hot desert with shifting sand dunes. Shifting sand dunes के अकॉर्डिंग क्या जाएगा कि जो winds के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनता है सैंड का, हवा के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ये एरिया यहाँ से मिट्टी हटके यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है, फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ से तो वो बैकवर्ड होता जाता है और इधर से भी बैकवर्ड। सो ये सैंड डून्स से क्या होते जाते हैं? शिफ्ट होते जाते हैं
सेकेंड है समर टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस जो फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज है, when the first stage is introduced and when the second stage is introduced, all of you have to revise all these things clearly. Next है case study Indira Gandhi Canal Command Area. It is one of the largest